السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام عدد مومنین، آج ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، علامات ظہور امام قائم علیہ محمد علیہ السلام پر ہم ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کوئی حدیث یا قرآن کی کوئی آیات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ تو آج اسی سلسلے میں قرآن سے سورہ النمل جو ہے، سورہ النمل کی آیت نمبر 82 جو ہے، ہم نے آپ کے لیے کوشش کی ہے کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور مومنین کو دعوت فکر دی جائے، اور باقی جو ہمارے برادران ہیں جو تحقیق کے متلاشی ہیں، حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ جیسا کہ موضوع آپ کو معلوم ہے کہ ہم امام قائم علیہ محمد علیہ السلام یعنی امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان کے سلسلے میں آپ سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے آج جو ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 82 نمبر آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، تاکہ اس کی جو بھی تفاسیر شیعہ کتب حدیث میں اور جو ہمارے برادران کے ہاں موجود ہے، وہ اس کو دیکھ کے اس حقیقت کو پہچانیں۔ تو یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمَهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے، تمام جتنے بھی ترجمہ کرنے والے ہیں، چاہے وہ برادران شیعہ ہوں، چاہے برادران اہل سنت جماعت ہوں، سب نے اس آیت کا یہی ترجمہ کیا ہے۔ اور جب ان پر ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو ہم زمین سے ایک دابہ کو نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا اور کہے گا کہ یہی وہی لوگ ہیں بے آیاتنا لا یوقنون، جو ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اس آیت میں اللہ جو ہے کوئی واقعے کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ کوئی ایسا ایک واقعہ ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب میرا قول ان پر واقع ہو جائے گا۔ اب اس قول کا یہ جو اللہ نے کوئی بات کی ہے کہ اللہ اس کو دہرا رہا ہے کہ جب تک میرا قول تم لوگوں پر واقع نہیں ہوتا تب تک میں کیا کروں گا، دابۃ الارض کو جو ہے وہ زمین سے برآمد نہیں کروں گا۔ یعنی کہ دابۃ الارض کو دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے اللہ نے کوئی بات کی ہے جو پوری ہونی ہے۔ جب تک وہ بات پوری نہیں ہوتی، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، کہ جب میرا قول تم پر واقع ہو جائے گا، وَأَخْرَجْنَا، تو اس وقت جو ہے میں زمین سے نکالوں گا کیا، دابۃ الارض کو۔ تو یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے قول خدا جو ہے اس نے پورا ہونا ہے، تو پورا ہونے کے بعد وہ دابۃ الارض جو ہے وہ زمین سے برآمد ہوگا اور وہ لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا۔ سب سے اہم ترین جو نقطہ ہے، جو چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو زمین سے میں دابۃ الارض کو برآمد کروں گا تو وہ کرے گا کیا، وہ لوگوں کے ساتھ، ان الناس تکلموا ان الناس، کہ وہ لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا اور کہے گا بل آیاتنا لا یوقنون، کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو میری آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کو یہ حوالے پیش کر دیتا ہوں تاکہ میرے بھائی جو ہیں، جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ میں ہر وقت آپ کے سامنے یہی بات کرتا ہوں، اس سے حوالے پیش کرنے سے ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لیں گے، اور اس کے ساتھ کئی اور چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی جو آپ کو مدد کریں گی کسی چیز کو سمجھنے میں۔ کیونکہ اگر میں بات کروں گا تو میں زیادہ سے زیادہ چند منٹ بات کروں گا، تو میری اس چند منٹ کی بات میں وہ وضاحت نہیں ہوگی جو آپ جب میں حوالے دوں گا تو مزید کچھ چیزیں کو پڑھیں گے جو ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ کیونکہ میرے پاس تو میں نے آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو لمبی نہیں بنا سکتا، لیکن میں یہ حوالے اس لیے پیش کروں کہ ان حوالوں میں ہی میری بات، تھوڑی بات ہی آپ کے لیے زیادہ ہو جائے گی۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کتاب کو تحقیق کریں گے، تو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو آج سب سے پہلے جو ہماری معتبر، جو بڑی ہی مشہور زمانہ تفسیر ہے، تفسیر قمی۔ تفسیر قمی کی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تفسیر قمی ہے، جلد نمبر اس کی 3 ہے، اور سورہ النمل۔
हवाला ऐसा है कि ये तफासिर की जितनी किताबें हैं ना, ये आसान हवाला होता है। मैंने सूरे का नाम बता दिया, सूरा अल नमल, आयत का नंबर है 82। तो आपका काम बनता है जो भी शिया तफसीर आपको मिले, सूरा नमल को खोलें, आयत नंबर 82 पे चले जाएं। आयत नंबर 82 पर जाके आप देखें कि उस इस आयत की तफसीर, सूरा अल नमल की 82 नंबर आयत की तफसीर में आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से क्या क्या मिलता है। तो ये पहली तफसीर जो मैंने आपको बताई, दिखाई, यह तफसीर कुम्मी। तफसीर कुम्मी की जिल्द नंबर 3 है। तो ये 3 नंबर जिल्द के पेज नंबर भी आपको बता देता हूं, ये 402 है उर्दू के अंदर। और अराबिक कोई उठाएगा तो सूरा अल नमल की 82 नंबर आयत पे चला जाए, अराबिक तफसीर के अंदर, तो आपको ये आयत, उसकी तमाम तफसीर जो कुछ भी लिखी हुई है वो आपको मिल जाएगी। दूसरा हवाला देख लें, ये भी बड़ी ही मशहूर ज़माना तफसीर है, तफसीर नूर अल सकलैन। तफसीर नूर अल सकलैन के अंदर मैं कह रहा हूं कि शिया की अगर 1000 तफसीर है ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो आपको 1000 के अंदर ये बात मिलेगी। और इसके अलावा हदीस की जितनी किताबें हैं, अक्सरियत किताबों के अंदर जो हदीस की किताबें, उनके अंदर दावतुल अर्ज के बारे में आपको मिलेगा कि वो मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। और आप किसी भी तफसीर की किताब को पढ़ेंगे तो जब सारी तफासिर आपके सामने खुलेंगी तो आपके सामने ये बात आएगी कि वो तफसीर जो है, इस तफसीर में दावतुल अर्ज के बारे में यही मिलता है कि वो अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। तो मैं यहां से बात लंबी ना हो, मुख्तसर ये कि दावतुल अर्ज के बारे में हमको आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से यही मिलता है कि दावतुल अर्ज जो है वो अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। उसको शेख सदूक ने भी अपनी किताबुल गैबा के अंदर, कमालुद्दीन के अंदर लिखा है, कमालुद्दीन व अतमामुल उलमा, और शेख तूसी ने अल गैबा के अंदर। इसी तरह बहुत सी जो इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर किताबें लिखी गई हैं, उनमें दावतुल अर्ज के बारे में यही मिलता है कि वो अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। इसी तरह शेख सदूक की और किताबें भी हैं, जिस तरह मानिउल अखबार है, इलाल शराय है, अलल शराय के अलावा और भी किताबें हैं। तो उनमें भी दावतुल अर्ज के बारे में यही मिलता है कि वो अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। इसी तरह हमारे पास असूल काफी है, वहां पर भी हमको मिलता है कि वहां पर दावतुल अर्ज का, यानी कुरान की जो तफसीर का हिस्सा है असूल काफी के अंदर, वहां पर भी हमको यही मिलता है कि वहां दावतुल अर्ज से मुराद अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। ये वो सारी किताबें हैं जो मैं दिखा सकता हूं, यहाँ पड़ी हुई है सारी की सारी किताबें। लेकिन मसला यह है कि वो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे बार यही गुजारिश करता हूं कि ये हवाला वो दे दिया है कि तफसीर की जो भी शिया तफासिर हैं उनको उठाएं। ये दो तो मैंने आपको दिखा दी। इसी तरह पीछे तफसीर अय्याशी पड़ी हुई है, तफसीर साफी पड़ी हुई है, तफसीर फरात पड़ी हुई है, इसके अलावा तफसीर अबू हमजा समाली पड़ी हुई है। बहुत सी तफासिर यहाँ पर मौजूद हैं। आपके पास भी जो तफासिर भी हो, सूरा अल नमल की आयत नंबर 82 पर जाएं, उस आयत की तफसीर में देखें तो आपको मिलेगा कि यहाँ दावतुल अर्ज से मुराद अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने सवाल किया, मौला आमा ये कहते हैं कि लफ्ज़ तकल्लम के मानी जख्म पहुंचाने के हैं, ना कि कलाम करने के हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जहां तक हम जख्म लगाने की बात है तो खुदा दोज़ख में कफार और मुशरिकीन को जख्म लगाएगा, लेकिन दावतुल अर्ज लोगों से कलाम करेगा। ये कलाम से मुराद कलाम करना है, ये दावतुल अर्ज जो है ये कलाम करेगा, इससे ये मुराद नहीं है कि कोई और चीज है। अब फिर एक शख्स जो है वो सरकार सादिक अलैहि मोहम्मद अलैहिस्सलाम से फरमाता कि एक शख्स ने जनाब हजरत अमार बिन यासर से कहा, अबू अल यकजान, कुरान की एक आयत ने मेरे दिल को तबाह कर दिया है और मुझे शक में डाल दिया है। हजरत अमार यासर ने कहा, वो आयत कौन सी है? उस शख्स ने कहा, व इज़ा वक़ा अल-कौलु अलैहिम अखरजना लहुम दाहबतम मिनल अर्ज़। इस आयत की तलावत की और कहा कि मुझे बताओ वो दावतुल अर्ज क्या होगा। हजरत अमार रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बंदा खुदा, मैं जब तक
तुझे दाबातुल अर्ज दिखा न दूं, ये नहीं कहा बता न दूं, बल्कि सरकार हमारे यासर ने कहा बंदे खुदा जब तक मैं तुझे दाबातुल अर्ज दिखा न दूं तब तक ना मैं खाना खाऊंगा ना बैठूंगा और ना ही पानी पीऊंगा। फिर हजरत अमार ने उसे साथ लिया और अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के पास चले आए। उस वक्त आप मक्खन लगी खजूर खा रहे थे। आपने अमार से फरमाया कि ए अमार आओ और हमारे साथ खजूरें खाओ। अमार आगे बढ़े और हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ बैठकर खजूरें खाने लगे। जिस शख्स ने इनसे ये मसला पूछा था तो उसे बड़ा तअज्जुब हुआ और कहने लगा सुभान अल्लाह, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मुझे दाबातुल अर्ज दिखाओगे नहीं, तो उस वक्त तक ना तुम पानी पियोगे, ना खाना खाओगे, ना बैठोगे, जबकि तुम तो खाना भी खा रहे हो, बैठे हुए भी हो। तो हमारे यासर ने कहा कि ए बंदा खुदा, अपनी अकल को इस्तेमाल करो, जो मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया है। मैंने कहा था कि जब तक तुमको दाबातुल अर्ज दिखा ना दूं, ना मैं खाऊंगा, ना पीऊंगा, ना बैठूंगा। तो यही वो दाबातुल अर्ज है जो मौला अली अलैहिस्सलाम है। तो इसी तरह बहुत सी हज़रफ़ा जो है साहबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। ये पूरी की पूरा पेज जो यहाँ से शुरू होता है दाबातुल अर्ज के बारे में, तफसीर नूर अल सकलैन जिल्द नंबर इसकी भी 3 ही है, नहीं जिल्द नंबर 6 नंबर जिल्द है, तफसीर नूर अल सकलैन की जिल्द नंबर 6 देख सकते हैं आप। और पेज नंबर 370 यहां से दाबातुल अर्ज का बाब शुरू होता है और ये खत्म होता है जाकर 370 से 375 तक। 370 से ये 5 पेज पर दाबातुल अर्ज के बारे में ही आपको मिलेगा। तो दाबातुल अर्ज जो है ये अलामात ज़हूर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से यानी कि ज़हूर से पहले दाबातुल अर्ज जो है, जिनके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये कुतुब शिया और कुतुब आले सुन्नत बरादरान के कुतुब में भी ये बातें मौजूद हैं कि वो उसके पास होंगी। तो उसमें अब ये बात साबित शुदा है कि जिसके पास मूसा अलैहिस्सलाम का आसा हो और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी हो, वो कोई जानवर नहीं होगा, दाबा का वहमानी जानवर नहीं होगा, बल्कि जो आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, तो वही हैं। और यही मिराज से अंबिया उन्हीं के पास मुंतकिल होती चली आ रही हैं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ही वो दाबातुल अर्ज हैं जो इमाम कायम आले मोहम्मद यानी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जमीन में दोबारा आएंगे। तो इसको हम शिया जो है एक महानी रज्जत का भी देते हैं, जिसको हमारे भाई बरादरान अहले सुन्नत नहीं जानते, और जो जानते हैं वो उसमें बहुत सी कम अकली वाली बातें करते हैं जो कुरान से साबित है, लेकिन वो उस चीज को तस्लीम नहीं करते। इंशाल्लाह आगे चलकर हम आपके सामने बाब रज्जत के बारे में भी आपके सामने बात करेंगे, वो कैसे कुरान में और हदीस आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम में मौजूद है, और कितनी कुरान की आयात हैं जिनसे रज्जत साबित है, और इस पर आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की कितनी ही हदीसें हैं जिनसे ये साबित है कि रज्जत है, और साबिका अंबिया के दौर में भी ऐसा हुआ। तो है आज का ये मौजू हमारा यहाँ तक था कि दाबातुल अर्ज जो है ये अलामात ज़हूर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में है कि वो दाबा ज़मीन से खरूज करेगा, ज़मीन से बरामद होगा। तो इस हवालों को आपके सामने मैंने पेश कर दिया, और मज़ीद अगर किसी भाई को मज़ीद भी कोई हवाले चाहिए हों, जैसा मैंने आपको पहले भी कहता हूँ, कुतुब हदीस जो हैं, क्योंकि ये तफासीर के मैंने हवाले दिए, जितनी भी शिया तफासीर हैं उनमें से किसी जो भी आपके पास मुहैया है, मुयस्सर है, उसको उठाएं, वहां जाके सूरा अल नंबर 28 नंबर सूरा है और 82 नंबर आयत को देख के उसकी तफसीर को पढ़ें कि आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने क्या लिखा है। तो दाबातुल अर्ज से मुराद वो अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो जज़ाकल्लाह, आज का जो हमारी बात थी वो यहाँ तक थी। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।